All right, everyone. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। Okay, what we were doing in the previous class, we were discussing about the addition of two vectors. Okay. We have add two vectors together at different angles. Okay. The first, we added two vectors when they are parallel, which means they are having an angle of 0 between them. We found that the magnitude of these two vectors is maximum. And then we increases the angle between the two vectors, acute angle, then right angle, then obtuse angle, and then obviously anti-parallel, which is 180 degree. So as we increase the angle between the two vectors, the resultant magnitude decreases. Resultant magnitude उस केस में हमारे पास वेक्टर्स का कम होता जाता है, ठीक है? We have discussed about the cases of acute and obtuse angle, ठीक है? हमने acute and obtuse angle के कुछ cases भी किए थे. Let's be doing some questions of past paper about the addition of vectors, and then we will be starting about the component of vectors के किसी भी vectors को how we will divide into two components, okay, so that we can find its effectiveness on the x-axis or on the y-axis, okay. So let's discuss about the additions of vectors. Let's do some questions. Okay, can you see the screen, everyone? Yes sir. State the difference between scalars and vector quantity. Obviously, the scalar quantities are those which do not have any direction. They have magnitude and unit, while the vectors are having magnitude, unit, and direction. This question is actually important one. This is the question you need to be doing. The forces of magnitude 6 newtons and 8 newtons acts at a point P. Both forces are always from point P at an angle of 40 degrees. Figure 1.1 shows a line of angle 40 degrees to one another. So these are the two forces. On figure, draw the vector diagram to determine the magnitude of the resultant. So you need to find out the magnitude, resultant magnitude of these two forces. One of the force is 6 Newton and one of the force is 8 Newtons. Okay. So please do this question. Okay, we can do this question by using a triangle method we have discussed. Okay, if we consider that this vector is 6 Newton, it's up to you. You can assume that the resultant won't make any difference. And this is your 8 Newtons vectors. And definitely they have an angle of 40 degrees between them. तो आप इन दोनों वेक्टर्स का हेड टू टेल रूल करके एक ट्राइंगल बनाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट. प्लीज फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट. किसी को हेड टू टेल रूल अगर याद नहीं है तो वो बता दें. मैं हेड टू टेल रूल एक दफा रिपीट कर देता हूँ. हेड टू टेल रूल याद है सबको? जी सर. जी. एनीवन? Please start doing this question.
Okay, Ryan has got the answer. Ryan, please check your answer. Simran got the answer, and I believe this is the correct one. Sir, can you please explain this? Okay. Okay, let me explain this question. 13.17, yes, Durdana, that's the correct answer. Okay. How you will add these two vectors together? Okay, let's discuss this now. Who is actually asking? Who was actually want me to explain this? And Irene. Irene. Okay, Irene. Beta, we have two vectors. The first vector is acting like this. The other vector is acting like this. It's up to you. We can make any, give magnitude to any. क्योंकि उसने कहा कि दोनों vectors एक point से merge हो रहे हैं. तो let's say this vector is 6 Newton and let's say this vector is 8 Newton. The important thing is the angle between them is 40 degree. ठीक है? Head to tail rule आपको क्या कहता है आयरीन? Head to tail rule ये कहता है कि आप पहले अपनी मर्जी से किसी भी एक वेक्टर को बना लीजिए. आयरीन पहले कौन सा वेक्टर बनाना है, ए या बी? A. ए बना लेते हैं, तो दिस इज ए. ठीक है, ये ए उसकी गिवन डायरेक्शन में आ गया. ठीक है, एंड दैट ए इज अ 6 न्यूटन वेक्टर. नाउ व्हाट अबाउट बी? बी बताइए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल के ऊपर है आयरीन? 40. 40 डिग्री के ऊपर है. बिल्कुल सही है. सो this is 40 and this is actually your B like this, and this angle is 40 degrees. Okay, and this is your 8 Newton vector. Now how you will find out the resultant? Resultant के लिए we'll join the tail of the first vector to the head of the second vector. तो हमने पहले के tail को second के head से जोड़ दिया और ये आपके resultant की direction होगी. Irene, this is a triangle. What is the internal angle of the triangle? 140. 140. We have a triangle which has two sides, 8 newtons and 6 Newton, and the third side is required. We only know one angle. एक angle हमें पता है. So in this case, we can use the cosine rule, which is R is equals to A square plus B square minus 2AB cos theta. ठीक है जी. Where theta is the internal angle of the triangle, not the 41. It will be 140. ठीक है. External angle नहीं लिया जाता. ठीक है. This is, let's say A, this is B. So this is R is equals to under root 6 square plus 8 square minus 2 times 6, 8 and cos 140. ठीक है. लोगों ने एंगल में गलती की हुई है. एंगल लोगों ने 40 ले लिया. Then R is equals to, I believe this is 100 minus 96 cos 140, and then you will take a root of that. G, and that gives you answer of 13.1 something, and that approximately 13.2 newtons. Okay. Irene, sir. जी सर बोले. बात सुनिएगा सर, इसको क्या ये पैरेललोग्राम मेथड से नहीं कर सकते? पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं हम, लेकिन आपको टू स्केल डायग्राम बनाने को नहीं बोला ना, ट्रिग्नोमेट्री से बोला गया. जी आयरीन. सर ये 8 न्यूटन और 6 न्यूटन ये आपने अपनी मर्जी से ऊपर नीचे लिखा है, तो इसके अंदर बताएंगे नहीं क्वेश्चन में? नहीं, जरूरी नहीं है. आप एक काम करें, दोनों की पोजीशंस को स्विच कर लो आयरीन, तब भी आंसर सेम आएगा.
Magnitude will remain same. Okay, sir. Any other question? जी, हुरिया, हुरिया तुम 13.17 का रूट कैसे निकाल रही हो? अच्छा, आप सच सच बताओ कि एंगल 40 किस किसने रख के गलत निकाला है, ये बताओ। सर मैंने पहले निकाला था 40 रख के। ठीक है, और किसी ने 40 रख के निकाला था? जी बच्चों, और किसी ने 40 रख के निकाला था? अच्छा, हो गया ये क्वेश्चन? एक मिनट अजान भी हो जाए जरा। अच्छा जी बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर किसी बच्चे का बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं तो मैं तो 40 डिग्री ही इस्तेमाल करूंगा, मुझे 140 डिग्री से एलर्जी हो रही है, तो अगर उसको 140 डिग्री से एलर्जी हो रही है तो अगर वो 40 डिग्री का एंगल यूज करना चाह रहा है तो फिर उस केस में वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ये जो नीचे मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले से फिर उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर फिर हम प्लस की माइनस की जगह प्लस का साइन रखेंगे, तो उससे फिर आप लोग करके देखिएगा तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, करके एक दफा चेक कर लीजिए, इससे भी जरा आंसर सेम आ रहा है क्या? जी, निकाला किसी ने इससे आंसर? ये सर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, चाहो तो आप लोग जो है वो ट्राइंगल बना के कोसाइन लॉ लगा सकते हो, और अगर आप ट्राइंगल नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट इसको करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप ये वाला प्लस का साइन उसमें ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? एनीवन? No, sir. अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की तरफ हम चलेंगे। ठीक है जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस वन। Question, it says the velocity vector diagram indicates an aircraft heading due to north. Is shown to scale in figure 1.1. There is a wind blowing from the northwest. एक एयरक्राफ्ट है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हवा जो है उस एयरक्राफ्ट को हिट कर रही है नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री के ऊपर। The speed of the wind is 36. The speed of the aircraft is 250. Draw an arrow to show the direction of the resultant velocity.
determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. तो एयरक्राफ्ट है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था सीधा, और उस एयरक्राफ्ट को विंड हिट कर रही है। विंड की जो स्पीड है उन्होंने सवाल में हमें दी है 36 मीटर्स पर सेकंड, और एयरक्राफ्ट की स्पीड हमें दी है 250 मीटर्स पर सेकंड। ये विंड जब इस एयरक्राफ्ट पे टकराएगी तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा आपका एयरक्राफ्ट। ये बताइए कि किस डायरेक्शन में जाएगा फिर थोड़ा सा एयरक्राफ्ट, एरो से थोड़ा सा शो करके बता दें जी। नॉर्थ ईस्ट। Yes, sir. Northeast. नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बिल्कुल सही है, कुछ इस साइड के ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड करके इस एयरक्राफ्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए कि कितनी होगी। ऐड कर लेंगे आप लोग इसको? जी आयरीन, अब कर लोगे बेटा इसको? जी सर, इसकी हम स्पीड यूज करेंगे ना, जैसे पहले 6 और 8 न्यूटन यूज हो रहा था। हाँ, वहां पे अब हम स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड इज अ Okay. स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, हम वेक्टर्स की एडिशन कर रहे हैं ना, तो हम जी, ऑब्वियसली 36 और 250 का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। जी कादिर साहब, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ जी, बोलिए। चलें कर रहे हैं इस सवाल को। कर ही रहा हूँ। जी क्या आंसर आया? नहीं, गड़बड़ है आयरीन आंसर में। दुर्गाना तुम्हारे आंसर में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो जरा दोबारा ध्यान से। अमान आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा रीचेक कर लें, थोड़ी सी वैल्यूज में फर्क है कुछ आपके आंसर के अंदर। थर्टी सिक्स एंड 250, यस। रायान आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंगल क्या रख रहे हैं आप लोग? ठीक है, 45 डिग्री का एंगल रख रहे हैं, तो 45 डिग्री रख के फिर गलत कैसे आ रहा है आंसर? देखें, R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cosine theta and root. R is equals to 36 square plus 250 square minus 2 times 36 250 cosine 45, and we will take a whole root of that, and that gives you answer of, yes, 225
0.98, that's 226 approximately. Yes, this is your correct answer. क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। सर ये आंसर ऐसे निकालना है कि पूरी वैल्यूज एक साथ जो है वो कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करनी है, वरना जो है कॉस्ट की वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करने पे जरा गड़बड़ वाला आंसर देती है। अच्छा, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना शुरू करो सही से अब तुम लोग, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, एक बहुत कॉमनली एक प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा है, दिस इज नॉट इवन इन एएस, दिस इज इवन इन A2 स्टूडेंट्स, A2 के स्टूडेंट्स में भी होता है कि अच्छा एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। A2 के स्टूडेंट्स के साथ भी होता है बच्चों कि तुम लोग कैलकुलेशन में एरर कर जाते हो, तुम लोग को कैलकुलेटर चलाने में गड़बड़ करते हो थोड़ी सी, ठीक है। स्टूडेंट्स को फिजिक्स आती है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, फॉर्मूला भी लगाते हैं, सही सारी चीजें लगाते हैं, लेकिन एंड में कैलकुलेशन एरर की वजह से आंसर गलत आता है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशंस को गौर से देखते कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर आपका जो है वो बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं करता और उसकी वजह से जो है फिर कभी कभार एरर आते हैं। जी दुदाना, ट्राइंगल कहाँ है? ट्राइंगल मैं आपको अभी बना के दे देता हूँ, नो इश्यू, ठीक है। दुदाना, हमारे पास एयरक्राफ्ट का वेक्टर यूं जा रहा है ना, एंड दैट इज 250, राइट, ठीक है। अच्छा जी, विंड का वेक्टर दुर्दाना यूं है, कुछ इस तरह से, ये है भाई। Yes. और इफ आई आस्क यू, if this angle is 45 Durdana, what will be this angle? 45. 45 ही होगा ये एंगल, ठीक है। तो अब जब दुर्दाना आप इस वेक्टर को यहां से पकड़ के, ये वेक्टर यहां से पकड़ के यहां सेट करोगे तो ये यूं कुछ सेट हो जाएगा, विंड का वेक्टर हेड टू टेल में, है ना। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल से यूं जोड़ना पड़ता है ना। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है बेटा, ये एंगल कितना होगा फिर? 45. 45 डिग्रीज हो जाएगा। And the resultant will be, how can we obtain the resultant? We can joining the tail of the first to the head of the second vector. Tail of first को head से second से हमने यूं join कर दिया तो ये हमारा resultant हो जाएगा। This is our resultant vector. This is 36. This is 250. बन गया triangle? जी जी सर. ठीक है। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एक और क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए, अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुम लोग थोड़े से, सर जी एक जी और दे दें। हाँ वही मैं, इनका क्वेश्चन दिखा देंगे, पार्ट जो पहला पार्ट कराया था। पहला पार्ट करवाऊं इसका क्या मतलब? नहीं, इसका क्वेश्चन दिखा देंगे दफा। अच्छा क्वेश्चन दिखा देंगे, नहीं क्वेश्चन इसका ये रहा, ये वाला ई पार्ट है ना, जी यही, थैंक यू। ठीक है। एक्चुअली में ये सवाल यहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ है, ये याद है प्रीफिक्सेस में हमने ये किया था, स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स और ये सारी चीजें, और फिर उसने ये भी बोला अंडरलाइन द वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। तुम लोगों को एक लिस्ट इसलिए लिखवाई थी वेक्टर और स्केलर्स की क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भी कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, चलें। डायग्राम दिख रही है सबको? जी सर। A boat is traveling in a flowing river. Figure 1.1 shows a velocity vector of the boat in the river water. The velocity of the boat in still water is 14 to the east. The velocity of the water is 8 meter per second from 60 degree northeast. आपको वाटर की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल डिटो उसी सवाल जैसा है जो हमने अभी ऊपर किया है। ऑन द फिगर ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इस बोट के ऊपर ये वेलोसिटी पानी टकराएगा
तो इसकी वजह से ये बोट थोड़ा सा सीधा नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। बताइए किस डायरेक्शन में जाएगी ये? Southeast. बिल्कुल सही है, साउथ ईस्ट की तरफ, विच मीन्स इट विल मूव समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सही है भाई? अच्छा जी, अब इसको ऐड करके मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, तो आप इसको पकड़ के वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ से यूं ला सकते हो, ये वाटर के वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है, और फिर इसको ऐड करके आप इसके रिजल्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है भाई? ओके, दैट साउंड्स आई बिलीव ओके, मेरा ख्याल है यही आंसर है 12.2। सर 12.2 आ रहा है। जी मेरा ख्याल है यही सही आंसर है इसका। एंगल कितना लिया आप लोगों ने? 60। सर इसका ट्रायंगल एक दफा बना के दिखा दें। अच्छा बेटे, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ इसका। देखें, पहले हम बोट की वेलोसिटी को बना लेते हैं। ये बोट की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाटर यूं आ रहा है कुछ, तो इसको अगर हम यूं बनाएंगे तो ये यूं बन जाएगा, है ना? सही है जी। भाई? अच्छा जी, अब ये बताओ मुझे कि ये जो वाटर आ रहा है, ठीक है जी, ये ऊपर भी एक लाइन बना देता हूँ। ये एंगल कितना है बेटे? 60। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? जी। ठीक है, और ये जो एक्चुअली में ये बोट है, ये कुछ इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये एंगल भी क्या होगा? 60 हो जाएगा। दिस इज 14, दिस इज 8 एंड दिस इज एक्चुअली योर रिजल्ट, है ना? जी। ये आर हो जाएगा। ठीक है, कर लो जरा जल्दी से इसको। आई थिंक 12.2 इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है। आई बिलीव सबने तकरीबन सही निकाल लिया इस दफा इसको। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अभी भी? नो सर। एनीवन? मोहिद, अहमद, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो दिस इज इट। आगे चलूं भाई? जी। अच्छा जी, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स टुडे। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और बाय द वे वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए क्यों जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जरा, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक कार है, इसकी वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट है, वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है? लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड। तो ये गाड़ी बताइए किस डायरेक्शन में जाएगी? राइट डायरेक्शन में जाइए ना। ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन के ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो टुवर्ड्स राइट है, उसकी वजह से ये गाड़ी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना जाएगी अगर बिल्कुल लेवल रोड है? बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी सर, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, कांस्टेंट रहेगी सर रोड पे रहेगी, बराबर है। बिल्कुल रोड पे रहेगी। क्यों रोड पे क्यों रहेगी भाई? या इसी चीज को फोर्सेस दूसरे बैलेंस्ड है। फोर्सेस बैलेंस है। दूसरे तरीके से इसको बात करते हैं, इस बॉक्स पे कंसीडर कर लो कोई फोर्स नहीं लग रहा और सिवाय इस फोर्स के 20 न्यूटन का, जो कि राइट साइड पे कर रहा है। अब बताओ, ये राइट साइड पे बॉक्स जाएगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना जाएगा? सर फोर्स ऊपर की तरफ लगी नहीं नहीं रही है। सर नहीं ऊपर जाएगा। नीचे दोनों तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो फिजिक्स के हिसाब से आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर
20 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई वर्टिकल इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम कहेंगे 20 न्यूटन फोर्स इज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इट्स vertical effect is 0. Agreed? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए, मैं एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करता हूं वैक्यूम के अंदर, ठीक है। वैक्यूम में जब इसको ड्रॉप करूंगा तो नीचे की तरफ काम करती है ग्रेविटी, ठीक है। ये बताइए, ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर कितना लेके जाए? तो स्ट्रेट लाइन में आएगी। वैक्यूम के अंदर ड्रॉप कर, वैक्यूम के अंदर ड्रॉप डायरेक्टली बॉटम में जाए। कोई फोर्सेस और इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, कोई फोर्स इसके ऊपर और एक्ट नहीं कर रही, वैक्यूम में है, लेफ्ट राइट साइड पे क्यों नहीं जाएगा भाई? एयर मॉलिक्यूल्स है नहीं अंदर। एयर मॉलिक्यूल्स है नहीं। ज्यादा बेहतर आंसर दीजिए। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वर्टिकल फोर्स है और वर्टिकल फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बॉल ये स्ट्रेट लाइन के अंदर वर्टिकली मूव करेगी। एग्री करते हैं इस चीज को? तो हम ये कहेंगे वर्टिकल force has no horizontal effect। ठीक है जी, तो वर्टिकल फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल इफेक्ट नहीं होता, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये जो इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट होता है इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं अगर तुम लोगों से बोलूं कि एक मेरे पास फोर्स है 20 न्यूटन्स की ऐसे, ये बताओ कि इसका वर्टिकल इफेक्ट या वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0। 0, बिल्कुल सही है। फिर मैं तुम लोगों से कहूं कि ये ग्रेविटी है 10, ठीक है, 10 की ग्रेविटी है न्यूटन पर किलोग्राम। मुझे ये बताओ कि ये 10 की फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना होगा? आप कहेंगे 0, क्योंकि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथ्स में कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, यही कहते हैं ना मैथ्स के अंदर। जी सर। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास, जैसे हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, मैं फिर से एक बात करता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट हमें यहां दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे, तो हम कहेंगे सर इसकी x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। इसी तरीके से अगर हमें एक पॉइंट B यहाँ दिख रहा होगा तो हम बोलेंगे सर इसकी y की वैल्यू तो होगी लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट मुझे C यहाँ मिल रहा है, अब मुझे बताइए क्या इस C पॉइंट की x वैल्यू या y वैल्यू होगी या नहीं होगी? होगी सर, दोनों। दोनों होंगी। ये वैल्यू इसकी x की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू इसकी y की वैल्यू हो जाएगी। एग्रीड? बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक फोर्स है वो यूं लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल के ऊपर लग रही है, अब मुझे बता दीजिए क्या इस फोर्स का, ये 5 न्यूटन की फोर्स का कोई वर्टिकल इफेक्ट होगा या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर वो आप शेप पे दोनों- डिपेंड करता है। शेप पे डिपेंड करता है मतलब? सर जैसे अगर सर्कल है तो हो सकता है वर्टिकल। नहीं, बट सर्कल के अंदर होगा तो तब भी तो वो 2 डायमेंशन में ही चलेगा ना। सर्कुलर मोशन तो होती ही 2 डायमेंशन के अंदर है, 1 डायमेंशन में तो होती ही नहीं है। सर्कल के अंदर तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो एक्स एक्सिस पे भी चलेगा और वाई एक्सिस पे भी एक साथ चलेगा, ठीक है। अब Yes. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये
फोर्स इसको आगे लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, या दोनों काम करेगी एक साथ? सर दोनों काम करेगी। बिल्कुल सही है। तो ये जो फोर्स इसको आगे की तरफ घसीट देगी उसको हम कहेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स एफ एक्स। एक्स कंपोनेंट भी क्या कह सकते हैं आप इसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और वो फोर्स का हिस्सा जो इसको ऊपर की तरफ उठा देगा उसको हम कहेंगे एफ वाई, क्योंकि ये एफ वाई एफ वेक्टर की बात हो रही है। और इसको हम कह सकते हैं इसका वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। अब बस ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दैट्स इट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। सर ये कंपोनेंट आपने क्या लिखा है सर, ये मुझे समझ नहीं आया। वर्टिकल वाई कंपोनेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्स ये कंपोनेंट जो सर समझाइए। एफ वेक्टर है ना, एफ वेक्टर है, तो ये जो एफ वेक्टर ब्लैक कलर की लाइन है, इस वेक्टर की कुछ इफेक्टिवनेस हॉरिजॉन्टली होगी, यानी ये कुछ इस बॉक्स को आगे की तरफ भी लेके जाएगा, और ये एफ वाला फोर्स इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लेके जाएगा। तो जो फोर्स का इफेक्ट इसको आगे की तरफ लेके जाएगा उसको हम कहेंगे ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फोर्स का वो हिस्सा जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा हम कहेंगे ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है या उस फोर्स का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? ओके तो एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। हो गया कॉपी है? जी। चलो, अब ये कंपोनेंट्स निकालना सीखते हैं कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं। देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए, और ये ए वेक्टर है कितना? 10 न्यूटन्स। 10 न्यूटन्स मतलब ये यकीनन कोई फोर्स है। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल से लेट्स से 30 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, इस वेक्टर के यकीनन दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल यू और एक कंपोनेंट इसका होगा वर्टिकल यू। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये 30 डिग्री का जो एंगल है ये किस वाले कंपोनेंट से मेजर हुआ है? नीचे वाले से। एक्स वाले से। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं ए एक्स और इसको मैं कह सकता हूं ए वाई। ठीक है, तो ये जो ए एक्स है ये ए एक्स हो जाएगा आपके पास ए कॉस थीटा के बराबर, और ये ए वाई किसके बराबर हो जाएगा? ए साइन थीटा के बराबर। अच्छा, इसके साथ मैंने कॉस क्यों लगाया, उसके साथ क्यों साइन लगाया? तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी मैं भी बता देता हूं, लेकिन पहले गौर से सुनिए। एक छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल मेजर होता है, ठीक है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल मेजर होता है उसके साथ हमेशा कॉस लगाया जाता है, और जिस कंपोनेंट से एंगल नहीं मेजर होता उसके साथ हमेशा साइन लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक और वेक्टर होता हमारे पास, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज 20 न्यूटन्स, और इस दफा ये एंगल कहां से इसका मेजर किया गया है? वर्टिकल से। कितना डिग्री है मेजर किया गया है? 40 डिग्री। तो इस केस में जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो मैं कहूंगा ये इसका एफ एक्स सी होगा। ठीक है, दिस इज एफ एक्स, सॉरी बी एक्स, और ये जो इसका कंपोनेंट जो हो जाएगा वो इसका बी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि बी एक्स किसके बराबर होगा? बी एक्स इस दफा बराबर होगा बी साइन थीटा के, और बी वाई इस वक्त किसके बराबर होगा? बी कॉस थीटा के। सही है,
क्यों अब बी वाई के साथ कॉस चला गया और क्यों एक्स के साथ साइन आ गया है भाई? जी क्योंकि बी एक्स से जो है वो साइड मेजर हो रही है और बी वाई बिल्कुल से ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जिस कंपोनेंट से एंगल मेजर होता है उसके साथ कॉस लगता है, और जिसके साथ एंगल नहीं मेजर होता उसके साथ हमेशा साइन लगता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये कंपोनेंट सब आपने निकालने हैं, तो निकलेंगे कैसे? ax किसके बराबर हो जाएगा? आप यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे। a कितना है आपके पास? 10 cos 30, ठीक है। और यहाँ पे ay निकालने के लिए ay बराबर हो जाएगा 10 sin 30। 90 माइनस 30 मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन ये वाला ही एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो जरा ax की वैल्यू बता दीजिए और जरा ay की वैल्यू बता दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax? 10 cos 30 क्या वैल्यू आ रही है? सर 8.66। 8.6 which is approximately 8.7 newtons. Okay, what about ay? 5. 5, exactly 5 आ रही है, Yes. बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि इन दो इस फोर्स A की ज्यादा इफेक्टिवनेस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस के ऊपर? X एक्सिस पर. एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल सही है। अब जरा इसको भी निकाल लेते हैं B के बारे में। बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? B हमें गिवन है 20 साइन, और ये बाय द वे 40। 60 नहीं लेंगे, 90 माइनस नहीं करेंगे, जो एंगल नापा हुआ है वही ले लेंगे, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके हिसाब से यूज कर लिया है। तो बी एक्स कितना आ रहा है हमारे पास? 5 कितना आ रहा है? 12.85। 12.85। तो हम 12.9 कंसिडर कर लेते हैं। और बी वाई कितना आ रहा है भाई जरा? बी वाई इज इक्वल टू 20 cos 40। क्या आंसर आ रहा है बी वाई का? 15.3। 15.3। इस फोर्स की वर्टिकल इफेक्टिवनेस ज्यादा है और इस फोर्स की हॉरिजॉन्टल इफेक्टिवनेस जी कम है। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे हमने 40 क्यों लिया है साइन वाले में? बेटा एंगल हमेशा वही वाला लिया जाएगा। देखो हमने उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। अगर हम 60 ले लेते हैं ना, तो फिर 60 के साथ तो हम क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। अगर आप इस एंगल को नापोगे ना 90 माइनस करके, तो बी एक्स आपके पास किसके हो जाएगा? अगर ये एंगल लोगे 60 डिग्री का, तो फिर ये आप 60 डिग्री लोगे तो इसके साथ भी कॉस लगाओगे, देखो आंसर सेम आ जाएगा। अगर आप बी एक्स को निकालते हो 20 कॉस 60 रख के, तो आप 20 कॉस 60 बताओ क्या आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है. 20 cos सर ये 60 50 क्या? होगा ना? रखेंगे ना, 60 तो नहीं है। हाँ 50 होगा, सॉरी 90 होगा, सॉरी हाँ सही 50। तो 20 cos 50 क्या आंसर आ रहा है? 12.85. वही आंसर आ रहा है जो आपके पास साइन से आ रहा है। जी सर। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे आप माइनस करके एंगल निकाल लें। देखो आगे जब हम जाएंगे तो हम बड़े कॉमनली फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाएंगे, और वो कंपोनेंट्स इतनी तेजी से बनेंगे कि हम फिर वो माइनस वाइनस करके नहीं करेंगे। हम सिंपल ये कहेंगे कि जिस कंपोनेंट से हम एंगल मेजर कर रहे हैं उसके साथ साइन लगेगा, सॉरी कॉस लगेगा, और जिससे हम एंगल नहीं मेजर कर रहे हैं उसके साथ साइन लग जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कॉपी हो गया ये? यस सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन भी कर ले जरा पास पेपर का इसका भी, फिर उसके बाद जो है हम इन कंपोनेंट्स का यूज भी देखते हैं कि कैसे हम इन कंपोनेंट्स के यूज करेंगे। जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? A force of 7.5 Newton acts at 40 degree to the horizontal. Calculate the component of the force horizontal and vertical. इसका vertical और horizontal force का component calculate करके बताइए।
सर हॉरिजॉन्टल का 4.8 होगा। जी हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 4.8? नहीं गलत लग रहा है मुझे ये 4.8। चेक करें भाई सारे जरा। 5.7 5.74 5.74 आएगा जी। हॉरिजॉन्टल आ रहा है 5.74 और वर्टिकल कितना आ रहा है 4.8 4.8। अच्छा तुमने फिर एंगल की गड़बड़ की होगी है ना? नहीं सर, मैंने कॉस की जगह साइन लगा दिया था। हाँ कॉस की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो गड़बड़ सही है। ठीक है जी। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। जी बच्चों एनी इश्यू इन दैट? सर इसके अंदर साइन और कॉस कहाँ लगेगा, ये एक दफा दोबारा बता दें। देखें बेटा जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल है ना, और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है मुझे ये बताओ कि कंपोनेंट किस कंपोनेंट से एंगल मेजर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? हाँ भाई कौन से वाले कंपोनेंट से एंगल मेजर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से हो रहा है ना। 40 डिग्री किससे मेजर हुआ है? हॉरिजॉन्टल से ना। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले के साथ हम कॉस लगा सकते हैं। दैट सिंपली हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा 7.5 cos 40 और वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा फिर 7.5 sin 40। ठीक है भाई अभी भी इश्यू है? नहीं सर समझ आ गया। ठीक है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ लगेगा cos और वर्टिकल के साथ लगेगा sin। ठीक है जी। सर ये साइन 40 होगा साइन 50 होगा? नहीं साइन 40 होगा, एंगल वही वाला लोगे। अगर साइन 50 करोगे तो फिर तो 5.74 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है एंगल एंगल यही वाला जाएगा जो 40 तुमने एंगल लिया है वही एंगल लेना। ठीक है माइनस करने की जरूरत नहीं है फिर 90 से। सही है। अच्छा जी और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी भी कोई डाउट है किसी के माइंड में तो क्लियर कर लीजिए। अच्छा बच्चों आप लोगों को मूवमेंट याद है? मूवमेंट का चैप्टर ओ लेवल्स में जी। यस अच्छा जी मुझे एक बात बताइए, ये एक रॉड है, एक रिजिड रॉड है, ये यहां से पिवेटेड है और हम इस रॉड के ऊपर यहां पे एक फोर्स ऐसे लगा। ठीक है और ये फोर्स इससे जो एंगल बना रही है वो एंगल बना रही है 20 डिग्री का और ये फोर्स है कितना 5 न्यूटन्स का। अच्छा पिवट से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है लेट से वो कितना है, डी कितना है 2 मीटर्स। किसी को मूवमेंट का फॉर्मूला याद है? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। F बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कि क्या मूवमेंट के लिए मैं सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं? नो सर वो क्योंकि जरा वो है ना डायगोनल है सर हमें वर्टिकल फोर्स पता करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। देखो हमें एक बात याद है, हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि मूवमेंट निकालने के लिए हमारी फोर्स को डिस्टेंस के ऊपर 90 डिग्री पे होना चाहिए। याद है ये सबको? जी। ठीक है तो अगर मैं इस फोर्स के तुम लोगों से कहूं कि 2 कंपोनेंट्स बनाओ तो आप कहेंगे सर इसका एक कंपोनेंट यूं होगा इस तरीके से और एक कंपोनेंट इसका यूं हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ऑरेंज वाला या पिंक वाला? पिंक वाला। ऑरेंज पिंक वाला। पिंक मैं कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड है ना, कोई मसला नहीं। तो पिंक वाला बना रहा है। अच्छा बाय द वे ये जो एंगल मेजर हो रहा है एक्चुअली में ये ऑरेंज वाले के साथ हो रहा है तो ऑरेंज वाले के साथ लगेगा कॉस।
तो यकीनन पिंक वाले के साथ क्या लगेगा, साइन। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, 5 sin 20 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? यस सर, आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हमें मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट किसके बराबर हो जाएगा, मूवमेंट बराबर हो जाएगा 5 sin 20 इंटू डी। डी हमें कितना गिवन है, 2। ठीक है जी, क्या आंसर आ रहा है वैसे मूवमेंट का यहाँ पे? सर 1.74 आ रहा है, सिर्फ साइन हाँ। 25 नहीं sin सर, 3.4 20 आ रहा है। ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 हो जाएगा। 3.4 हो जाएगा, ठीक है, 3.4 न्यूटन मीटर। देखो बच्चों, इस तरीके से आगे आगे हमारे पास कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि यार एक फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे इस तरह से काम कर रही है, उसका मूवमेंट निकालो। आप लोगों के दिमागों में कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि सर इसका वर्टिकल कंपोनेंट मूवमेंट बनाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूवमेंट नहीं बनाएगा, और फिर आप इस तरीके से मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। किसी ने अभी Yes. भी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करते जाएं। एनी अदर क्वेश्चन? दुर्दाना, क्वेश्चन है? नो सर। परीक्षा, आइरीन, सर एक सवाल है बोले। सर, यहाँ पे हमने 20 क्यों लिया है? वो पूरा तो हॉरिजॉन्टल पे टच नहीं कर रहा है ना, लेकिन अरे अच्छा, चलो, नहीं बेटा वो हॉरिजॉन्टल से टच नहीं कर रहा, लेकिन लाइन से जो एंगल बन रहा होता है ना, जैसे कि मैं इस 5 न्यूटन को बाहर निकाल लूं तो यूं निकल आएगा ये 5 न्यूटन, है ना? तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, है ना? और ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और बाय द वे ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल है इस वक्त, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये 5 वाला? ओ अच्छा, हाँ सही है, ठीक है। 20। ठीक है ना? तो तुम्हारे पास बायो तो नहीं है? जी क्या? तुम्हारे पास बायो तो नहीं है? बायो क्या मतलब सर? बायो बा, सब्जेक्ट हाँ, बायोलॉजी तो नहीं है तुम्हारे पास? है सर। बायो है ना, तो फिर तुम्हें 7 खून माफ है मैथ्स के, तुम्हें हर चीज माफ होगी मैथ लेकिन मैथ्स वालों को कुछ नहीं माफ होगा, मैथ्स वालों को नहीं छोड़ना मैंने। मैथ्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, PA2 की भी क्लासेस हैं, तो लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है भाई, और इंशाल्लाह फिर वी विल बी डिस्कसिंग one last thing in vector, that is inclined plane, and then we will move on to our next chapter, that is kinematics. Okay, okay bhai, Allah hafiz everyone. ओके सर। अल्लाह हाफिज। आप